Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is the editorial video for problem C from Weekly Lead Code Contest 281, that is construct a string with repeat limit. Okay, so you are given a string s and an integer repeat limit. Construct a new string repeat limited string using the characters of s such that no letter appears more than repeat limit times in a row. Okay, fine. You do not have to use all the characters from s. So this statement is a big statement. Okay, I will tell you why later. So basically return the lexicographically largest repeated limited string possible. Okay, and if you don't know what is lexicographically largest repeated limited string, you can read this definition here. Okay, so I hope question is quite clear. Fine. So what you have is you have a string s and a number or an integer that is repeat limited. Okay, you have to make lexicographically largest possible string from that string s by rearranging the characters, but you have to make sure that no more same letter appears no more than repeat limited times in a row. Okay, for example, if you see this example, you have a string s that is CCZ AZ CC, and here you have a value repeat limit is equals to 3. So you have to make sure that during making lexicographically largest string from the string s, no same characters appear more than 3 times in a row. Okay, so since we are making lexicographically largest string, okay, so we have to make sure that the more the character is bigger, it appears in the left side. Okay, so since z is the biggest character here in the string s, so all the z, because z is only coming 2 times, so we put all the z together. After that we have c. Total number of values of c is 1, 2, 3 and 4. Okay, but we can put only 3c together. Okay, since repeat limit value is 3, so we put 3c together after z, and after that we have to break this c with some other value. So we have a for that, so we put a single a here, and after that again we put remaining value of c. So now how are we going to find out this? So since we have to make lexicographically largest string, okay, so we already know कि जो भी बड़ा कैरेक्टर होगा हम उसको सबसे स्टार्टिंग में रखते हुए जाएंगे. ठीक है, जो बड़े कैरेक्टर से होंगे हम उसको स्टार्टिंग में रखेंगे. सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग s. ओके, एंड उस पे हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स है, दैट इज z z c c a b d c c z. ओके, हमें इस स्ट्रिंग से हमारा फर्स्ट एम क्या है? आवर फर्स्ट एम इज टू मेक लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग. ओके, हमारा फर्स्ट एम ये है और हमारा सिंगल एम यही है. व्हाई? Because in the question we already have given that you do not have to use all the characters from s. Okay, so basic aim तुम्हारा यही है, main aim, that you have to make lexicographically largest string. It is not always given that you have to use all the characters from s. Okay, तो तुम्हारा मेन एम लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट बनाना है. तुम्हें सारे के सारे कैरेक्टर्स अगर कर सकते हो देन यूज देम, अगर नहीं कर सकते तो डोंट यूज देम. ओके, बट योर मेन एम इज टू मेक दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग. फाइन. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? तो बेसिकली उसके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो हमारे पास बड़े कैरेक्टर्स होंगे, दैट इज जो हमारे पास करेंट में बड़े कैरेक्टर्स होंगे. ठीक है, सपोज इन दिस स्ट्रिंग इफ आई मेक अ फ्रीक्वेंसी अरे, सो आई हैव z 3 times. ओके, तो आई हैव z 3 times, सॉरी आई मेंशन्ड 4 here, 1 2 3. I have c 4 times. Okay, then a 1 time, b 1 time, d 1 time. Okay, total number of characters I am having is 10. 1 2 3 4 5 1 2. Okay, so this is the frequency array. So it is quite simple that for making a lexicographically string I'll be putting z in the left side or in the starting. So since, or you can say value of k or value of repeat limit is equals to 3, so I can put all the z together. Okay, now after that for c, ठीक है, उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी सबसे बड़ा कैरेक्टर जो है वो d है, तो मैं यहाँ पे d पुट कर देता हूँ. ठीक है, सिंस मुझे सबसे बड़े कैरेक्टर्स पहले पुट करने,
सिंस मेरा मेन एम जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट बनाना है. आफ्टर दैट आई हैव बिगेस्ट कैरेक्टर सी, बट सी मेरे पास 4 हैं, बट आई कैन पुट 3 हेयर ओनली. तो मैं 3 सी यहाँ पे डाल देता हूँ. ठीक है, अब रिमेनिंग मेरे पास सी कितने बच जाएंगे? 1 एंड 1 ए है 1 बी है. ठीक है, तो सी को मैं अभी डाल नहीं सकता, तो मैं दूसरा कैरेक्टर कौन सा डाल सकता हूँ? बी. सिंस सी के बाद बड़ा कैरेक्टर कौन सा है? बी. आई पुट बी हेयर. ओके, आफ्टर दैट अगेन मेरे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? दैट इज सी एंड बी. तो मैं ऑब्वियसली सी डालूंगा, देन ए डालूंगा. तो दिस इज माई डिजायर्ड स्ट्रिंग. आई कैन यूज ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम एस. ओके, इन एनी केस, सपोज इन एनी केस अगर मेरा जो ये एग्जाम्पल है कुछ ऐसा होता, मेरे पास ये नहीं होते. ठीक है, मेरा जो एग्जाम्पल है कुछ ऐसा होता, सी मेरे पास 4 हैं और डी मेरे पास ओनली 1 है. ठीक है, और मेरे पास डी भी नहीं है. लेट्स जस्ट से आई डोंट हैव डी हियर. ओके, in this case how I'm going to make the final string? So simply I can't put d here since I don't have d in the string. मेरे पास z 3 थे तो मैंने z 3 डाल दिए. ठीक है, अब मेरे पास c 4 हैं तो मैं 3 c तो डाल दूंगा, बट एक c मैं नहीं डाल सकता बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर कैरेक्टर टू पुट हेयर बिटवीन c. Okay, so that's why in this case I can make a final desired string of length 6 only and not of length 7. That's why here in the question you are given already, you do not have to use all the characters from S. Okay, so कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है जब तुम लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग बनाते टाइम सारे के सारे कैरेक्टर्स यूज नहीं कर पाओगे ऐसे, एंड दैट इज फाइन. That is right approach. Why? Because your main aim is to make lexicographically largest string. Okay. Now, for these type of questions, when you want biggest character after every transition, okay, what I am saying is कि मुझे हर एक कैरेक्टर पुट करने के बाद अपने डिजायर्ड स्ट्रिंग में मुझे चाहिए क्या होगा? सिंपली मुझे बिगेस्ट कैरेक्टर चाहिए होगा उस एनी मोमेंट में, है ना. सपोज ये पूरी स्ट्रिंग है और मुझे अभी इसमें से सबसे बड़ा कैरेक्टर पता लगाना है. मुझे पता चल गया z. आफ्टर दैट मुझे कौन सा सबसे बड़ा कैरेक्टर बचे हुए कैरेक्टर्स में पता लगाना है, तो वो d. ठीक है, आफ्टर दैट c, आफ्टर दैट b, आफ्टर दैट a. तो फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन सिंपली यूज प्रायोरिटी क्यू. ओके, प्रायोरिटी क्यू, स्पेलिंग गलत है उस पर फोकस मत करना. प्रायोरिटी क्यू. Okay, if you don't know what is priority queue, you can simply go to Geeks for Geeks and simply check. You will get it easily. Okay, so we can use priority queue here, and we can put elements with their frequency in the priority queue. Okay, I am giving you the approach of the question. तो मैंने क्या किया? सिंपली मैंने z के साथ 3 डाल दिया, सॉरी c के साथ 4 डाल दिया, d के साथ 1 आएगा. मैं सिंपली मैक्स की प्रायोरिटी की यूज़ कर रहा हूँ, तो जिसकी भी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी दैट इज z, उसके बाद d, उसके बाद c, उसके बाद b, उसके बाद a, ऐसे आएगा. ठीक है, फाइन. नाउ मैं सबसे पहले टॉप एलिमेंट o ऑफ 1 में एक्सेस कर सकता हूँ. मुझे मिलेगा सबसे पहले z. ओके, मुझे जैसे ही z मिला मैंने क्या किया? z की फ्रिक्वेंसी जो थी वो चेक की. इफ इट इज़ लेस देन k, आई विल सिंपली एड ऑल द z टू माई आंसर स्ट्रिंग. ओके, इफ इट इज ग्रेटर देन k, मैं सिंपली क्या करूंगा? k टाइम्स तो z को ऐड कर दूंगा अपनी आंसर स्ट्रिंग में, 3 टाइम्स आंसर में ऐड कर दूंगा, और बाकी बचे हुए जो z है उनको मैं कहाँ पुट कर दूंगा? दोबारा अपने प्रायोरिटी क्यू में. बट बिफोर दैट व्हाट आई विल सिंपली डू, जो z से जस्ट बाद वाला एलिमेंट है, सिंस आई एम मेकिंग लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट, तो z से जो जस्ट बाद वाला एलिमेंट है, ठीक है, दैट इज d. मैं तीन z पुट करने के बाद आई विल पुट अ सिंगल d हेयर. ओके, एंड जैसे ही मैं एक d यहाँ पे पुट कर दूंगा, उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा? बाकी बचे हुए d भी प्रायोरिटी क्यू में पुट कर दूंगा और बाकी बचे हुए z भी प्रायोरिटी क्यू में पुट कर दूंगा. सो इन द सेम वे अगेन मुझे सबसे बड़ा कैरेक्टर मिलेगा, अगेन मैं k टाइम्स उसको पुट कर दूंगा अपने आंसर में, अगेन मुझे सबसे बड़ा कैरेक्टर मिलेगा, मैं अगेन उसको ऐड कर दूंगा अपने आंसर में, इस तरह से until my priority queue becomes empty. Okay, so now I am showing you the code, you can simply get it.
तो मैंने स्ट्रिंग की लेंथ ले ली एस में, ठीक है, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया जिसमें मैं फ्रिक्वेंसी काउंट करूँगा, देन आई टू का प्रायोरिटी क्यू, और प्रायोरिटी क्यू में मैंने सारी की सारी फ्रिक्वेंसी और वो कैरेक्टर पुट कर दिया। एंड मेक श्योर जो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ प्रायोरिटी क्यू है वो तुम्हारा क्या होगा पेयर में, वो कैरेक्टर, बिकॉज यू आर सॉर्टिंग इन कैरेक्टर ऑर्डर, ठीक है। आफ्टर दैट आई टुक अ आंसर स्ट्रिंग, empty string obviously, then I will loop until my priority key becomes empty. After that मैंने टॉप मोस्ट एलिमेंट निकाला with biggest value. For first test case I will be getting a z. Okay fine. Now मैंने सिंपली चेक कर लिया कि जो k की वैल्यू है दैट इज लिमिटेड स्ट्रिंग, k की वैल्यू में और जो मेरी करंट वैल्यू फ्रिक्वेंसी है करंट कैरेक्टर की y, उसमें से कौन सा कम है, जो भी कम होगा मैं उतने टाइम्स आंसर में वो करंट कैरेक्टर ऐड कर दूंगा। ओके एंड फॉर नेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर मेरे टॉप मोस्ट कैरेक्टर की दैट इज z के बाद जो d है उसके लिए मैंने लिया एक x1 और y1। अब मैं सिंपली चेक करूंगा कि अभी क्या मेरे कुछ करंट कैरेक्टर्स बच रहे हैं, दैट इज y माइनस लेंथ इज ग्रेटर देन 0। हाँ अगर बच रहे हैं तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, मुझे d एक ऐड करना पड़ेगा। जस्ट सिंपली रिमेंबर दैट एग्जाम्पल विच आई हैव टोल्ड यू जस्ट बिफोर दिस। ओके तो मुझे एक d ऐड करना है, तो मैं सिंपली चेक करूंगा अगर मेरा जो प्रायोरिटी क्यू है वो एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स आई हैव सम अदर कैरेक्टर लेफ्ट इन माई प्रायोरिटी क्यू, मैं उस कैरेक्टर को उठाऊंगा सिंपली, ठीक है, और x1 और y1 में उसकी वैल्यू ले लूंगा। अदर देन अगर मेरे पास और कोई कैरेक्टर नहीं है, द सेम एग्जाम्पल विच आई हैव टोल्ड यू कि मेरे पास अगर z 3 है और c 4 है और k की वैल्यू 3 है, तो मैं एक c को नहीं लग सकता, ठीक है, तो ये वाला केस है। अगर मेरे पास और कोई कैरेक्टर नहीं है रखने के लिए तो आई विल सिंपली रिटर्न आंसर स्ट्रिंग फ्रॉम हेयर। अदरवाइज मैं सिंपली क्या करूँगा, आंसर में x1 को प्लस करूँगा, ठीक है, दैट इज d को प्लस कर दूंगा, और उसके बाद जो बचे हुए मेरे पास z, जो बचे हुए z है वो मैं प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दूंगा। और अगर मेरे पास d कोई एक्स्ट्रा बच रहा है, सिंस आई हैव ओनली यूज्ड 1 d फ्रॉम हेयर, ठीक है, तो y1 माइनस 1 इफ ग्रेटर देन 0, इफ स्टिल जो सेकेंड प्रायोरिटाइज्ड कैरेक्टर था वो बच रहा है, मैं उसको भी अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दूंगा, ठीक है, एंड एट द एंड आई विल सिंपली रिटर्न माई आंसर स्ट्रिंग। So if you have any doubt in this question, you can ask me in comment section. I will explain you in brief again. And for this code, you can simply check in description. Thank you guys for watching.